So class 12, chapter 2, reproduction in flowering plant. Chapter 2, reproduction in flowering plants. Flowering plants. So flowering plant called angiospermic plant. Angiospermic plant. Flowered. Sex organ of the flowering plant. A flower is a modified shoot. Flower is a modified shoot. National flower of India is lotus, called Nilambo nucifera, and rose is the national flower of England, called Rosa indica. So our national flower or Indian national flower or national flower of India is lotus, Nilambo nucifera. Largest flower, I have already told you, largest flower, answer is Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi. Smallest flower, smallest flower is Ulphia globosa. Ulphia globosa. So Rafflesia lacks root, stem and leaves. Root, stem and leaves, and parasitize on a vine. Vine पर ये अपना लाइफ बिताता है Rafflesia. Rafflesia called total root parasite. Important question for medical exam. Rafflesia called total root parasite. Ulphia called rootless. Called rootless, aquatic, duckweed. Rootless, aquatic, duckweed. And tallest flower or tallest inflorescence. Answer is Ole, Amorphophallus, Titanum, 2.5 to 3 meter tall. Ole, Amorphophallus, Titanum. So a complete flower possesses 4 parts. That is calyx, unit called sepal, corolla,
unit called petal, androecium, unit called stamen, and last gynoecium, unit called carpel or pistil. Unit is carpel or pistil. Stamen called male sex organ. Stamen called male sex organ, and carpel or pistil called female sex organ. So both androecium and gynoecium take part in sexual reproduction. So both androecium and gynoecium called essential whole or essential for sexual reproduction. Now, a structure of a typical flower. A structure of a typical flower. So outermost whole of a flower is sepal. This part is thalamus. This part is thalamus or receptacle. The stalk of flower is pedicel. This part is ovary, style, stigma, that is carpel or pistil. Here the gland at the base of ovary called nectariferous gland. Nectariferous gland is present below the disc of ovary, secrete nectar. So secretion of this gland attract birds and insects for pollination. So hummingbird, that is the smallest bird of the Cuba, get attracted towards flower, or a sterile honeybee, that is the worker honeybee, eat nectar, store it in crop, that is called honey stomach, and convert it into honey. So source of honey is nectar. Now petal and petal or corolla tube, petal, androecium,
Androecium also arises from the thylamus and having different length of stamen. So there are many stamens or 5 stamens. It number of stamen varies from flower to flower. So in your NCERT book many stamens are shown in the diagram. So remember, this one is the stamen. A stamen called male sex organ and carpel or pistil called female sex organ. Now, अब जो हम लोगों का हेडिंग होगा कि एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए सेपल पेटल की ज़रूरत नहीं है. सेपल और पेटल एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे बहुत सारे फ्लावर के पेटल्स काफ़ी कलर्ड होते हैं और कलर्ड होने के कारण, डिफरेंट कलर्स होने के कारण वो किसी भी एनिमल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. रिप्रोडक्शन के लिए ही वो अट्रैक्ट करता है, यानी पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है. तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. पेटल, कभी कभी सेपल के भी बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सेपल पेटल के जैसे हो जाते हैं और जब सेपल पेटल के जैसा हो जाता है तो आप उसको कहते हैं पेटेलॉइड सेपल. ऑलरेडी हम आपको मुसेंडा में बताए हुए हैं. कभी कभी ब्रैक्ट हो जाते हैं कलर्ड, जैसे कि हम आपको बोगनविलिया में बता चुके हैं. तो ये सब स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एक तरह से, क्योंकि वो किसी न किसी इंसेक्ट या किसी बर्ड या किसी अदर एनिमल को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करता है कि वो आकर के पॉलिनेशन करा दे. तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में रिप्रोडक्शन में मदद करता है. तो हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट. अब आपको समझना ये है कि जो वर्ड हम यहाँ पर लिखे हैं गैमेटोफाइट, 2 वर्ड आते हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट. और आपको पता होगा कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में जब मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन, तो वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसका नाम होगा गैमेटोफाइट. तो जहाँ जहाँ गैमेटोफाइट लिखा जाएगा आपको समझ जाना है कि वहाँ आपको लिखना है N और जहाँ लिखना है स्पोरोफाइट वहाँ लिखना है 2N. तो हमने अभी यहाँ पर एक मेल गैमेटोफाइट लिखा है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा मेल गैमेटोफाइट के लिए. तो आंसर होगा यहाँ के लिए पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स, या आप इसको कहेंगे स्मॉल साइज होने के कारण माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा. तो पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर के लिए, गैमेटोफाइट के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे N, स्मॉल n. ये इंडिकेट करेगा कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. सो N मीन्स हैप्लॉइड. तो क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो जाएंगे मियोसिस होने के बाद तो उसको आप कहेंगे गैमेटोफाइट. अब समझना क्या है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम आपने लिखा है एंड्रोसियम या उसके यूनिट का नाम आपने लिखा है स्टामेन, तो स्टामेन के जो पार्ट्स होंगे उसी से इस पॉलन ग्रेन को बनाना है. और बनाने का प्रोसेस आप जानते हैं, माइक्रोस्पोर बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हम लोग को देखना होगा कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक स्टामेन के किस पार्ट में संभव होगा और कैसे होगा. तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले एंड्रोसियम को. एंड्रोसियम यानी आपको देखना होगा इसके यूनिट को जिसका नाम क्या होगा स्टामेन. और एक स्टामेन को देखिए
तो एक स्टामेन, सिंगल स्टामेन को अगर आप समझ जाएंगे तो एक हो या अनेक हो, सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम लोग एक स्टामेन को फोकस करते हैं। तो एक स्टामेन में एंथर लोब को देखिए कि एंथर लोब जो होगा वो एंथर लोब अगर दो दिखला रहे हैं हम आपको, तो दो एंथर लोब के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो दोनों एंथर लोब को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तब उसको आप कहेंगे कनेक्टिव। और ध्यान दीजिए, एक साइड के एंथर लोब में हम आपको 1 और 2 लिख के दिखला रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर 1 और 2 जिसको हमने डिनोट किया है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉलन सैक को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉलन सैक। तो ये पॉलन सैक को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों स्ट्रक्चर 1 और 2 जो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं हम, वो क्या होगा? पॉलन सैक। अब देखिए, एक एंथर लोब जो कनेक्टिव से कनेक्टेड है, तो एक साइड में हमने 2 पॉलन सैक दिखलाया, तो दूसरे साइड में भी हम आपको दिखला रहे हैं 2 पॉलन सैक है। तो हर एंथर लोब में आप देख रहे हैं कि 2 पॉलन सैक है, जहाँ पर कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स बनेगा। तो हमको ये समझना होगा कि 2 अगर एंथर लोब है तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव की जरूरत है। लेकिन किसी किसी में अगर एक ही एंथर लोब हो, जैसे कि हम आपको सिर्फ एक ही एंथर लोब दिखला रहे हैं अभी, अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर अब कनेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्टिव है दूसरे को कनेक्ट करने के लिए होता। अब हम सिंगल एंथर लोब दिखला रहे हैं तो इसमें 2 ही पॉलन सैक होंगे, और ऐसे कंडीशन में इसके जो फिलामेंट है वो फिलामेंट लगेंगे कहाँ? तो फिलामेंट लगेगा थैलेमस पर जाकर के। ये थैलेमस हो गया। अब थैलेमस का जो स्ट्रक्चर है, आप फ्लावर में देखे होंगे ऐसे ऐसे कई स्टामेन को आप निकाल के यहाँ से दिखला सकते हैं। वो बेस पर भी अटैच हो सकता है। बेस पर अटैच होगा तो आप कहते हैं बेसिक फिक्स्ड। अब देखिए, यहाँ से भी हम इसको कनेक्ट करके दिखला सकते हैं। इसके डॉर्सल सरफेस से अगर फिक्स्ड होगा तो क्या कहेंगे? डॉर्सी फिक्स्ड। अगर ये पूरे लेंथ ऑफ एंथर लोब तक चला जाए तो क्या नाम होता है? एडनेट। और इसको भी पास कर जाता है, ऊपर चला जाता है तो कहते हैं एपेंडिकुलेट। और अटैचमेंट जो फिलामेंट के साथ आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट है। तो इस फिलामेंट के साथ जो एंथर लोब का अटैचमेंट होगा, इसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड होता है इंसर्शन। तो याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शन? तो इंसर्शन मीन्स होगा द वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद द एंथर लोब। और आपको टाइप्स ऑफ इंसर्शन हम आपको अभी सुनाए हैं, बेसिक फिक्स्ड, डॉर्सी फिक्स्ड, एडनेट, एपेंडिकुलेट। और इसके अलावा हम आपको बताए थे पैडी में या व्हीट में वर्सेटाइल एंथर होते हैं, तो वर्सेटाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक फिलामेंट दिखलाएं ऐसे लगा हुआ स्ट्रक्चर, और इस फिलामेंट को अगर हम कहाँ से दिखलाएं? कनेक्टेड है थैलेमस से। ये थैलेमस है, या इसको आप कहेंगे रिसेप्टिकल। तो थैलेमस या रिसेप्टिकल से ये कनेक्टेड है। हम लोग फोकस कर रहे हैं सिंगल पर। तो अगर एक एंथर लोब में 2 सैक है, 1, 2 या 3, 4, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको कहेंगे डाइथेकस। इसलिए ये फिगर जो होगा ये डाइथेकस के लिए होगा, डाइथेकस एंथर। और इस डाइथेकस एंथर में हम आपको कितने पार्ट दिखलाए हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। तो ये दोनों हो गया एंथर लोब। एंथर लोब्स आपके कितने हो गए? 2। इसलिए बीच में क्या होगा? कनेक्टिव। कनेक्टिव कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट एंथर लोब्स और बोथ एंथर लोब्स टुगेदर। ये हो गया आपका फिलामेंट, जो इसके साथ हम लगा करके आपको दिखला रहे हैं। फिलामेंट, दिस स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, जो हम आपको दिखला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो एंथर लोब आपका कितना है? सिंगल। एंथर लोब यहाँ जो हम आपको दिखला रहे हैं वो कितने हैं? तो एंथर लोब यहाँ पर कितना है? तो आंसर होगा 1। ऐसा कहाँ होता है? तो जब आपको फैमिली हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे मालवेसी फैमिली में होता है। अब देखिए, बुक में इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखलाया है, लेकिन अगर जब ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर्स तो ये क्या होंगे? फट जाएंगे।
डेहिसेंस इसमें हो जाएगा और फटेगा तो यहाँ पर तब आपको एक ओपनिंग नजर आएगा और इस ओपनिंग को आप कहेंगे स्टोमियम। तो हम यहाँ पर फोकस कर देते हैं कि स्टोमियम हो जाएगा। तो कितने पार्ट हो गए एक स्टामिन के? तो स्टामिन के 3 पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है एंथर लोब, दूसरा हो सकता है फिलामेंट और तीसरा हो सकता है कनेक्टिव। सो कनेक्टिव हो भी सकता है और कनेक्टिव नहीं भी हो सकता है। नेसेसरी नहीं है कि कनेक्टिव होगा ही। जैसे आपके सामने में भी एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी कनेक्टिव होने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एंथर लोब 1 है। तो एंथर लोब 1 है तो उसको कनेक्ट करने की जरूरत क्या है? इसलिए यहाँ क्या होगा? नो कनेक्टिव। ये साफ स्पष्ट करता है कि अगर हम एक स्टामिन के बारे में बात करें तो स्टामिन में एंथर लोब 1 होगा तो कहेंगे मोनोथेकस। तो ये मोनोथेकस होगा जो मालवेसी फैमिली में होगा। जैसे चाइना रोज, ये मोनोथेकस एंथर हो गया। और 2 होगा एंथर लोब या होंगे पॉलन सैक्स। तो वैसे कंडीशन में आप उसको कहेंगे डाइथेकस। एनीवे, तो हमने ऐसे आपको बताया 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स ऑफ ए स्टामिन हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में डाइथेकस एंथर होते हैं और आपके बुक में भी डाइथेकस को ही दिखलाया गया है। इसलिए हम लोग इसी पर स्ट्रेस देंगे डाइथेकस एंथर पर और बोलेंगे कि इसके इस कंडीशन में स्टामिन में 3 पार्ट्स होंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 पार्ट्स ऑफ स्टामिन, 3 पार्ट्स ऑफ अ स्टामिन एंड नेम ऑफ द पार्ट आंसर इज फिलामेंट। फिलामेंट। Second part is anther lobe. Second part is anther lobe. So filament is 1, anther lobe may be 1 or 2. 3 is connective. Connective may or may not be present. अगर 2 anther lobes होंगे तो होगा और 1 होगा तो नहीं होगा। सो मे बी प्रेजेंट, गारंटी नहीं है कि होगा ही, मे बी प्रेजेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनीवे, अब अंदर के बात को थोड़ा समझना होगा। तो हम लोग जरा देखें कि अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे एंथर लोब को तो वो हमको काफ़ी विजिबल होगा। अंदर तक के पार्ट्स को हम आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आपके बुक में दिखलाया गया है उसी को हम लोग जरा यहाँ फोकस कर रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर। अब ये बीच में जो स्ट्रक्चर होगा इसको आप कहेंगे कनेक्टिव, क्योंकि इसका काम होगा दोनों एंथर लोब को कनेक्ट करना। तो आप इसको क्या कहेंगे? कनेक्टिव। और आप समझ गए होंगे ये 1, 2 जो होगा ये सब क्या होगा? पॉलन सैक्स। पॉलन सैक का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं ये क्या होगा? पॉलन सैक। ये चाहिए, ये 4 पॉलन सैक हम आपको दिखला रहे हैं क्योंकि ये डाइथेकस एंथर है। तो फिगर है डाइथेकस के लिए, डाइथेकस एंथर लोब। तो 2 एंथर लोब हो या एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक हो, उसके आधार पर भी आप उसको डाइथेकस बोल सकते हैं। लेकिन सिंगल एंथर लोब होगा तो क्या कहेंगे? मोनोथेकस।
अब ध्यान दीजिए, इसके वॉल में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसके वॉल में कई लेयर्स होंगे। अब इसको फोकस करना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे बाहरी लेयर जो होगा वो क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन सैक, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इज एंडोथेसियम। सेकेंड लेयर जो आप देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एंडोथेसियम। एंड एंडोथेसियम इज हाइग्रोस्कोपिक। Hygroscopic means moisture absorbing, can absorb moisture from the surrounding environment. Moisture absorbing, hygroscopic. Third layer is middle layer. Middle layer may be 2 or 3 layered structure. 2 or 3 layered structure. Next layer is tapetum. Fourth layer is tapetum. So important layer, tapetum. And last, all these structure surround a central important structure, and that is called pollen mother cell or microspore mother cell. That is the sporogenous tissue. Sporogenous tissue, and this special sporogenous tissue is pollen mother cell, or microspore mother cell, pollen mother cell or microspore mother cell. So all sporogenous tissue is diploid structured, 2n. Diploid means 2n structure. And after meiosis or reduction division, R/D means reduction division, produce pollen grains or microspore. Pollen grains or microspores, that is haploid N. So formation of pollen grains or microspore called microsporogenesis. Called microsporogenesis. So N structure or haploid structure formed after meiosis or reduction division called male gametophyte. So pollen grain or microspore is male gametophyte. That is N. फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, एक फ्लावर में एंड्रूसियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंड्रूसियम में
जो यूनिट है वो है स्टामेन, और स्टामेन का नंबर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। एक स्टामेन के 3 पार्ट हो सकते हैं, फिलामेंट, एंथर लोब, कनेक्टिव। कनेक्टिव नहीं भी हो सकता है। अब आप एंथर लोब की बात करें तो एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक्स होंगे तो कहेंगे डाइथेकस। अब स्वाभाविक है कि उस जिसका नाम आप थेकस बोल रहे हैं, पॉलन सैक जिसको बोल रहे हैं, उस पॉलन सैक को आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जरा देख लीजिए यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो सैक है यहाँ पर बना हुआ, इसको अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, या कहेंगे पॉलन सैक। पॉलन सैक, या इसका नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर या स्पोरेंजियम आप बोलेंगे। और उसी के वॉल में, इसके दीवार में, वॉल में आप देख रहे हैं कितने लेयर्स है? 4 लेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल में कितने लेयर्स होंगे? तो आप कह सकते हैं 4 लेयर्स इन द वॉल ऑफ पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 layers in the wall of microsporangium, wall of microsporangium or pollen sac, microsporangium or pollen sac. So remember, pollen sac or microsporangium is the part of anther lobe, and anther lobe is the part of stamen, and stamen is the unit of androecium, androecium called male sex organ of flower. So each pollen sac having 4 layered wall, that is epidermis, endothecium, middle layer and last tapetum. 4 layered wall of each pollen sac. All layer of wall surround a special spore producing structure, and that special spore producing structure called sporogenous tissue, and sporogenous tissue is pollen mother cell or macrospore mother cell. So after meiosis or reduction division, each pollen mother cell produce 4 pollen grains, because in a single meiosis cell division occurs twice. So single meiosis produce 4 cells. So one cell, I mean one pollen mother cell or one macrospore mother cell produce 4 pollen grains or macrospores. One pollen sac may have single pollen mother cell or many pollen mother cell or macrospore mother cell. So it means each and every pollen mother cell or macrospore mother cell undergoes meiotic division and produce pollen grains. So if number of pollen mother cells are many, then many pollen grains get produced. So remember,